ਹੈਲੋ एवरीवन, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ +1 ਕਲਾਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ 3rd ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਂਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਮੋਟੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ 3 ਤੋਂ 4 ਫੈਕਟਰ ਯਾਦ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਇਹ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੈਪਥ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਹੀਮੋਸਟੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੀਮੋਸਟੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਬਾਊਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਹੀਮੋਸਟੈਸਿਸ। ਤਾਂ ਹੀਮੋਸਟੈਸਿਸ ਕੀ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ, ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਕੀ ਆ ਬੋਡੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਔਰਗਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੁਕਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੋਰਮਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੀਐਚ ਲੈਵਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁਣ 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੀਐਚ। ਪੀਐਚ ਬੇਸਿਕਲੀ 7 ਤੋਂ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਸਿਡਿਕ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। 7 ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਿਊਟਰਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੈ ਪਿਊਰੂਵੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ 2 ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ATP ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੱਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਿਊਰੂਵੇਟ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਪਿਊਰੂਵੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ATP ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਊਗਾ। ATP ਕੀ ਦਊਗਾ? એનર્ਜੀ ਟੂ ਸੈੱਲ। ਅਗਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਪਿਊਰੂਵੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਪਿਊਰੂਵੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨੀਅਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਊਰੂਵੇਟ 'ਚ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਕੀ 4 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਫਿਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿਊਰੂਵੇਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ? ਐਨਰਜੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੈਟਲਿਸਟ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ 10th ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਬਾਰੇ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿਚ increase speed of a reaction। ਜੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ।
ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਬਾਇਓ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਕੈਟਲਿਸਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਨਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ, ਕਿ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਐਚ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਪੀਐਚ। ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੀਐਚ 7.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੀਐਚ 7.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7.6 ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਮਹਾਉ ਪੀਐਚ 7 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਚਲੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 6.6 ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ 7.6 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ 9.1 ਹੋ ਗਈ, ਦੈਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर अपने एंजाइम की वर्किंग रुक जाऊगी, दिमाग लगाओ, तो आप प्रोसैस ने नहीं होना है। अगर प्रोसैस नहीं होगी, अपने सैल्स को एनर्जी नहीं मिलूगी, अल्टीमेटली आप डाई कर जाएंगे। ठीक है जी, मतलब बॉडी की करती है, अगर मैं बाहर कुछ ऐसा खा लिया जिसना की है पीएच लैवल मेरी बॉडी का घटना स्टार्ट हो गया, दैन बॉडी क्या करूँगी, कुछ ऐसी जी प्रोसैस करूँगी अंदर ताकि मेरा पीएच लैवल की दोबारा नॉर्मल चला जाए। ठीक है जी, जिमें जो लोग पॉइजन पीते हैं, पॉइजन करती की है, जहर खाना बंदा क्यों मरता है, कभी दिमाग सोचिए। जहर क्या होती है, एसिडिक इन नेचर होती है, समझिए। जो बंदा जहर पीता है तो अंदर पीएच इन्नी ज़्यादा घट हो जाती है कि एंजाइम्स अपना काम करना बंद कर देंगे ने, अल्टीमेटली बंदे की क्या हो जाती है, डैथ हो जाती है। ठीक है जी, अपने ब्लड के कोल एक प्रॉपर्टी है, मैं दसदा तुहानूं, अपने ब्लड जो अपना ब्लड है वो एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम की है बफर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ बफर। अपना ब्लड की एक बफर सोल्यूशन है। बफर सोल्यूशन किहड़े होंदे ने, थोड़ा एक्सप्लेन करदा मैं तुहानूं, मैं इस चीज़ को रब कर रहा। अपना ब्लड की आ एक बफर सोल्यूशन है, समझो गल नूं, बफर क्या होंदा है। बफर सोल्यूशन इहो जिहे सोल्यूशन होंदे ने, these are the solutions which counter the change in their pH। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਫਰ। ਬਲੱਡ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਨੇਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੀਐਚ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਬਲੱਡ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੀਐਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇੱਕ कंटेनर से बफर सोल्यूशन पाया हुआ, देखो आप लैब च बना सकते हैं। आप बिल्कुल अच्छे तरीके केमिस्ट्री की क्लास से पढ़ा, केमिस्ट्री अपना पूरा चैप्टर है इस चीज़ के ऊपर कि बफर सोल्यूशन किस तरीके बनते हैं। सपोज करो मेरे को बफर है, ये पीएच कितनी है, सपोज 7.2। ठीक है, मैं क्या किया, ये बाहरों एसिड पाता। अगर मैं एसिड पाऊँगा, मैंने पता कि पीएच घटनी चाहिए थी, बट बफर को यह प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को एडजस्ट करता है। ये स्टिल पीएच कितनी रहती है, 7.2। क्लियर। सिमिलरली अपना ब्लड काम करता है, ब्लड भी अपने पीएच चेंज नहीं होता होगा, बट एक हद तक। अगर सपोज करो मैं 5 ml एसिड पाया से, तो इन्हें 5 ml एसिड को काउंटर करता, बट अगर मैं बाहरों 100 ml एसिड पा दूँगा, फिर क्या होगा, फिर क्या पीएच डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली ब्लड ना होता है, ब्लड एक हद तक पीएच को मेनटेन कर सकता, बट सपोज करो बंदे ने पॉइजन पी ली, बहुत सारी पॉइजन पी ली, दैन क्या होगा, पीएच बहुत ज़्यादा डाउन हो जानी है जितने, क्योंकि ब्लड भी काउंटर नहीं कर पाओगे। जितने पीएच डाउन होएगी, एंजाइम्स ने काम करना बंद कर देना, अपनी बॉडी का कर भी डाई। क्लियर। तो होमोस्टेसिस का सेकंड पॉइंट पता लग गया जी कि पीएच लैवल क्यों बैलेंस करना पैना अपनी बॉडी में, क्योंकि जो एंजाइम्स काम करते हैं वो एक पार्टिकुलर पीएच से ही काम करते हैं। ज़्यादा डिटेल से आप केमिस्ट्री पढ़ाएंगे +2 क्लास कि क्यों ऐसा होता है। थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग ब्लड शुगर लैवल। तुसीं देखिया होना है कि अपने को बहुत सारे मरीज शुगर के होंगे हैं, है ना। शुगर मतलब कई का शुगर बढ़ता होंगे, कई का शुगर क्या करता होंगे है, घटता होंगे है। पौधे का नैगेटिव फीडबैक तो मैं आ रहा थोड़ा टाइम पहले
ब्लड शुगर लेवल डिस्कस कर लिए। देखो पहली गल है कि शुगर या ग्लूकोज, शुगर कह सकता या मैं की कह सकता ग्लूकोज, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ग्लूकोज चाहिए क्यों होंगे, वाई वी नीड ग्लूकोज। सारे को पता है कि ग्लूकोज की करता है सैल के अंदर जाता है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू ATP मॉलिक्यूल्स एंड दीज ATP मॉलिक्यूल प्रोवाइड अस एनर्जी। क्लियर, कैट का ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट, बट ग्लूकोज भी किया एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट। अगर अगर ग्लूकोज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे बॉडी के दैन ज़्यादा ग्लूकोज भी क्या करूँगा, खराब करूँगा बॉडी में। ठीक है जी, अगर ग्लूकोज घट अमाउंट प्रोड्यूस होगा दैन भी क्या करूँगा, खराब करूँगा। अगर सपोज करो ग्लूकोज क्या हो गया, एक्सेस च प्रोड्यूस हो गया, मैं भी यह जी चीज़ खा ली जिन्हें कि मैं ग्लूकोज बहुत सारा देता, एक्सेस जो प्रोड्यूस होता है तो बॉडी इनू काउंटर करती है, उल्टी डायरैक्शन से काउंटर करती है तो एक हार्मोन रिलीज करती है। तुम पढ़िया हुआ 10th क्लास, दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज इंसुलिन। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, जो एक्सेस ब्लड शुगर लेवल है, ठीक है जी, इनू मेनटेन कर सकता है। हम थोड़ा दिमाग शायद क्यूरोसिटी होगी कि इंसुलिन यह की करता, इंसुलिन यह की करता है कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। वेट अ सेकंड, मैं हमने समझाना चाहूँगा। सपोज करो सैल है मेरे को, ठीक है जी, सैल। सपोज मैं ब्लैक कलर में बना रहा कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एंड मैं रेड कलर में बना रहा एक ही है इंसुलिन का मॉलिक्यूल है, हार्मोन है इंसुलिन। देखो इंसुलिन ग्लूकोज को खत्म नहीं करता है, समझो गल। सपोज करो इतने 3 4 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, ठीक है, बट सैल में सिर्फ 2 चाहिए ने, सैल नीडेड ओनली 2, नीडेड ओनली 2, सैल में सिर्फ 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चाहिए, 3 फालतू आ गए, मतलब 3 कह रहे एक्सेस च प्रेजेंट है। दैन बॉडी क्या करती है, इंसुलिन के 3 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करूगी अपनी बॉडी, क्योंकि उधर रिएक्शन एक्शन होया। जब आप न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ते हैं ना, पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ 9th क्लास, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्विवेलेंट ऑपोजिट रिएक्शन। तो बॉडी ने किया इंसुलिन के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस किए। हम एक्चुअल प्रोसैस क्या होंगे, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की करते हैं सैल के अंदर एंटर करते हैं, एक ही करते हैं सैल के अंदर एंटर, सैल के अंदर जाके ये साइटोप्लाज्म से जाते हैं, पता ना साइटोप्लाज्म बारे सैल के, उत्थे की है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसैस के थ्रू ATP कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम 5 के 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सैल के अंदर एंटर करना चाहता है, अगर सैल के अंदर एंटर करेंगे दैन की अपना सैल डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सिर्फ 2 चाहिए ने, 5 बट उससे एक्सेस पूरा करना है। दैन इंसुलिन के मॉलिक्यूल की करते हैं, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं, जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड। वो क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने, जो एक्स्ट्रा 3 बंदे थे इन्हों एंटर नहीं कर देंगे। पॉइंट क्लीयर होया, इन्हों की वो एंटर नहीं कर देंगे। दैट्स द रोल ऑफ इंसुलिन। इस तरीके का किया इंसुलिन अपना किया काम करता है। होपफुली मैं क्लीयर हो गया हूँ दोस्तों किस तरीके का काम करता है। अच्छा, ये तो गल होगी एक्सेस की। अगर सपोज करो ग्लूकोज मिनिमम अमाउंट मतलब स्मॉल अमाउंट हो रहा, मतलब जिन्ना बॉडी में चाहिए है उन्ना क्या ग्लूकोज नहीं बन पा रहा, दैन बॉडी क्या करूँगी, दैन बॉडी क्या करती है, याद रखियो, एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम आ ग्लाइकोजन। दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या करता है, शायद मैं थोड़ा नाम स्किप कर गया, शायद ग्लाइकोजन कुछ ऐसा का नाम है, प्लीज चेक करो बुक के ऊपर। तो वो क्या करता है, इस लो शुगर लेवल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो आप 2 गल्लां याद रखनी है कि भाई अगर एक्सेस च होगा तो बॉडी केड़ा हार्मोन प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, अगर लिमिटेड च हो गया तो केड़ा प्रोड्यूस करती है, ग्लूकोजन होंगे, सॉरी ग्लूकोजन, ग्लूकोजन यस, ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन तो आप फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो अलग गल है। अच्छा, तुम सुनिया होना अक्सर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, कई तो टैबलेट्स लेंगे हैं, कई की है एक टीका लगवाते हैं, उन्होंने ऑलमोस्ट डेली का टीका लगता है। अगर वो टीका ना लगे दैन उन्हें डैथ भी हो सकती है, या थोड़े अराउंड भी कोई ना कोई होना है। वो टीके च क्या होंगे, वो टीके के क्या होंगे, इंसुलिन होंगे। उस टीके च क्या होंगे, इंसुलिन। एक्चुअल कई इंसुलिन इन्होंने याद होगा पैनक्रियस प्रोड्यूस करता होंगे, थोड़ा 10th क्लास से याद करो। इंसुलिन एक हार्मोन जिन्होंने कौन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियस।
अगर पैंक्रियस अच्छे तरीके नाल इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है, सपोज करो मैंने इंसुलिन के 5 मॉलीक्यूल चाहिए थे, ठीक है, बट पैंक्रियस ने सिर्फ 2 मॉलीक्यूल प्रोड्यूस किए, गॉट इट। तो हम जो सैल के अंदर आ मान लो सैल है, इतने 5 ग्लूकोज के मॉलीक्यूल आ गए, पर इन्होंने रोकने लिए बॉडी ने सिर्फ 2 मॉलीक्यूल बनाए कि इंसुलिन के। तो क्या 2 मॉलीक्यूल इन्हें 5 ग्लूकोज के मॉलीक्यूल रोक पाएंगे? आंसर नो। तो इन्होंने किया ज़्यादा ने अंदर एंटर करना है, कहना अपना की बॉडी का बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिफेक्ट आया पैनक्रियस। हुण इस चीज़ को काउंटर करने लिए असीं की करते हैं, बाहरों इंसुलिन पाने हैं, असीं की इंजैक्ट कर लें इंसुलिन, तो 2 + 3 मॉलीक्यूल्स आप बाहरों ले लें। हुणे 5 के 5 मॉलीक्यूल इत्थे आ जाते हैं इंसुलिन के, तो अपनी वर्किंग की है बिल्कुल सही होनी स्टार्ट हो जाती है। पॉइंट क्लीयर होया? जिहड़े बंदे ने टीका लगवाते हैं वो कि बेसिकली इंसुलिन का टीका लगवाते होंगे, क्योंकि उन्होंने किया इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, ठीक है जी। कई बंदे ग्लूकोजन का टीका भी लगवाते हैं, अगर उन्होंने अंदर की ब्लड का शुगर लेवल घट बढ़ रहा है। पॉइंट क्लीयर, कॉन्सैप्ट क्लीयर कि क्या होंगे सारा ये सारे चीज़ अंडर आ रहा अपने को हेमोटेसिस के अंदर। एंड दैट थिंग देखो बॉडी ने की किया, आ देखो सब वो देखो वो बना लो ऐदा, इतने भी वेट पिया, वेट पैन करके की आ चीज़ थल्लों दबेगी, जिमें ग्लूकोज के मॉलीक्यूल ज़्यादा बन गए थे, तो बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया, तो तुरंत की किया इंसुलिन बनाने शुरू करते। जिसकी बॉडी नहीं बना पाती है उन्होंने को बाहरों इंजैक्ट करते, बट इंसुलिन तो पहुँच गया ना। दैट प्रोसैस इज कॉल्ड द नैगेटिव फीडबैक। ये सारी प्रोसैस की है, इट इज कॉल्ड द नैगेटिव फीडबैक कि बॉडी की करती है उल्टी डायरैक्शन के काम करना स्टार्ट कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि उन्हें अपने अंदर एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखना है, ठीक है। कॉन्सैप्ट क्लियर? चलो एक मैं तुम थोड़ी होर एग्जाम्पल दे सकता इस टॉपिक के। देखो मैं थोड़ा डिटेल की जा रहा ताकि थोड़े कॉन्सैप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो ताकि जो प्लस 2 क्लास जाऊँगा तो कोई दिक्कत ना हो बायोलॉजी स्पेशली। देखो 2 तरह के एनिमल होंगे हैं, वन आर कोल्ड ब्लडेड, इन्होंने शायद एक्टोथर्म भी क्या बोलते हैं, सैकेंड आर वार्म ब्लडेड, ध्यान ना समझे, इन्होंने एंडोथर्म बोलते हैं, ठीक है जी। वन आर कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड के बहुत सी एग्जाम्पल स्नेक आ गए या लिजर्ड्स, किडनियां, ठीक है जी। एंड वार्म ब्लड च कौन आ गया आप ह्यूमनस, जिन्हें भी मोस्टली मैमल्स हैं, दे आर ऑल वार्म ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड तो वार्म ब्लडेड क्या फर्क है? वार्म ब्लडेड के की आ ਹਿਊਮੋਟੈਸਿਸ का फिनोमिना होंदा है, वार्म ब्लडेड के की आ ਹਿਊਮੋਟੈਸਿਸ का फिनोमिना होंदा है कि बॉडी के अपने अपने बैलेंस करती है, बट कोल्ड ब्लडेड के नो ਹਿਊਮੋਟੈਸਿਸ। याद रखियो गल, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो पूछा जा सकता, नीट वगैरह से पूछा जा सकता कि ਹਿਊਮੋਟੈਸਿਸ की प्रोसैस सिर्फ वार्म ब्लडेड होती है। मैं थोड़ी एक एग्जाम्पल दे सकता है, जो केली होंगी है तुम अक्सर देखते हो, केली होंगी अक्सर वो अपने घर अंदर जी लाइट लगी होंगी ना, जिम्मे सपोज करो दीवार है, आ लैंप है, हमेशा लैंप के कोल जाके बैठती होंगी है, कभी कभी नोट करो वो लैंप के कोल जाके क्यों बैठती है? क्योंकि लैंप को क्यों हीट मिल रही होंगी है, उस हीट में की करती है अपने बॉडी का टैंपरेचर क्या करती है, एडजस्ट करती है। यदि बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है कि अपने आप अंदरों एडजस्ट करे, बट अपने को फंक्शन है, अपनी बॉडी की कर सकती है। जिम्मे सपोज करो मैं किसी रेगिस्तान वगैरह से चले गए, ठीक है, तो अपनी बॉडी देखिए बाहर हो गई, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो अपनी बॉडी की स्वेट करना स्टार्ट कर देती है। स्वेट समझ लो, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना आना क्यों स्टार्ट होता है? स्वेट ना क्या करती है बॉडी, स्वेट ना क्या करती है बॉडी, जो एक्सट्रा हीट होंगी है, एक्सट्रा हीट में की करती है एलिमिनेट कर देती है, ठीक है जी। देखिए अपनी जब आप जाने तो आप गर्मी की लाल हो जाते हैं, लाल क्यों होंगे हैं? क्योंकि मेरे ब्लड वैसल्स ने वो फैल जांदियां ने, ब्लड वैसल्स क्या करते हैं, फैल जांदियां ने, ब्लड वैसल्स एक्सपेंडेड, ताकि ज़्यादा ज़्यादा हीट क्या कर पान बाहर भेज सकन, ताकि बॉडी अंदर हीट जमा ना हो पाए। ये 2 प्रोसैस आप करते हैं, बट इन्हों यह जी कोई प्रोसैस नहीं होंगी है, मतलब इन्हों की बॉडी का टैंपरेचर चेंज कर सकता, बॉडी टैंपरेचर मे चेंज, बॉडी टैंपरेचर मे चेंज, तो ये इन्हों की बॉडी की फंक्शनिंग के उपर टैंपरेचर चेंज होता कोई फर्क नहीं पैंता है। फंक्शनिंग डिड नॉट इफेक्ट,
फंक्शनिंग डिड नॉट इफेक्ट बट जो वार्म ब्लडड एनीमल्स ने जो ऑर्गेनिजम्स ने इन्हां च की आ टैंपरेचर चेंज नहीं होंदा टैंपरेचर डिड नॉट चेंज एक फिक्स टैंपरेचर मेनटेन करते हैं अपने अंदर अगर टैंपरेचर चेंज हो गया वो कंडीशन आ रही है तो बॉडी क्या कर जाएगी डाइट फंक्शनिंग रुक जाती है फंक्शनिंग की है फंक्शनिंग स्टॉप्स तो प्लीज़ 2 पॉइंट नोट करो वार्म ब्लडड एंड कोल्ड ब्लडड के बारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने अपनी नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ने बेसिक्स थोड़े बन रहे हैं बायोलॉजी के क्लियर चलो तो वी आर डन विद कि किस तरीके ना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है किस तरीके ना बॉडी पीएच लेवल मेंटेन करती है पीएच क्यों मेंटेन करना बिकॉज ड्यू टू द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम लिख लो प्लीज लिख लो सारा कुछ एंड थर्ड वन बहुत इंपॉर्टेंट वन क्योंकि ब्लड शुगर लेवल घटना पता स्टार्ट होने दिन बॉडी क्या करती है इंसुलिन एज वेल एज ग्लाइकोजन या ग्लूकोजन की प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर देती है क्लियर चलो दैट इज ऑल अबाउट हीमोस्टेसिस जिन्ना मैं तुम्हें मैक्सिमम दस सकता कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल में दसे ठीक है जी नेक्स्ट देखो यार तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द अडेप्टेशन तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना दैट इज अडेप्टेशन अडेप्टेशन मेरा नहीं ख्याल है कि दसन की लोड़ है अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है अडेप्टेशन की प्रॉपर्टी मोस्टली ऑर्गेनिज्म के विच होंदी है कि वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं अडेप्ट मतलब ढालना एज पर एज देयर एनवायरनमेंट ठीक है जी अपने को ह्यूमन को भी प्रॉपर्टी हैगी है कि असीं की कर सकते हो अपने आप ढाल सकते हैं जिवें अक्सर देखो सपोज करो मैं पहले इंडिया रह रहा था मैं फिर कितने चला गया अमेरिका चला गया वो टैंपरेचर काफ़ी लो आ इन कंपेरिजन टू इंडिया बट 5 ਤੋਂ 10 दिन के बाद मैं अपने आप को अडेप्ट कर लूँगा मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दैट इज अडेप्टेशन हम देखो अडेप्टेशन जेकर मैं डेफिनेशन लिखा तो डेफिनेशन जगह तुम लिख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म की अपने आप को एडजस्ट करता एज पर एज द एनवायरमेंटल कंडीशंस मतलब एडजस्टमेंट्स मेड बाय organisms as per as environmental as per as changing environmental conditions ठीक है जी एंड अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर अडेप्टेशन नहीं होगी तो एवोल्यूशन भी नहीं होनी लेकिन ये पॉइंट नोट करो जो अडेप्ट करूँगा वो ही सर्वाइव कर सकता है जो अडेप्ट नहीं करूँगा सर्वाइव नहीं कर सकता मतलब अडेप्टेशन इज द की टू सर्वाइव वो कोई इसमें वर्ड समझ आ रहे हैं कि बोल रहे हैं ये अडेप्टेशन किमें है की टू सर्वाइव अगर बंदा अडेप्ट नहीं करूँगा सर्वाइव नहीं कर सकता ठीक है कोई भी ऑर्गेनिज्म देखो बेसिकली अडेप्टेशन तीन तरह की होंगी है अडेप्टेशन फर्स्ट स्ट्रक्चरल पहली एक स्ट्रक्चरल मेरे ख्याल स्ट्रक्चरल का मीनिंग पहले थोड़ा स्ट्रक्चरल को समझ लें कि भाई स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है इधर समझना बहुत आसान है कि सपोज करो मैं एक मिनट में थोड़ा एग्जाम्पल समझाना बस 2 मिनट वेट करो मैं एक सैटिंग कर दूँ तो इसलिए तक तुम थोड़ा स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो तो 3 तरह की अडेप्टेशन होती है मैं लिख देना जरा फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल सेकेंड वन इज बिहेवियर एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल ठीक है ये 3 तरह की अडेप्टेशन है फर्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वन भी इंपॉर्टेंट है थर्ड वन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या होती है और देखो मैं थोड़ा सा समझाना चाहना कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का मतलब क्या है सपोज करो जो काउज वगैरह होंगे ने जब बोल्स वगैरह होंगे ठीक है जी इनिशियली उन्होंने सिंग नहीं थे अगर तुम थोड़ा जिहा पता होगा हिस्टरी बारे इनिशियली उन्होंने हॉर्न नहीं थे हॉर्न मतलब सिंग बट उन्होंने अटैक वगैरह होंगे थे या आप कह सकते जो शिकार होता है शेर वगैरह होता उन्होंने सर्वाइवल लिए किया वो हॉर्न क्या हो गए डिवेलप हो गए उन्होंने स्ट्रक्चर क्या आ गया चेंज आ गया दैट टाइप ऑफ
दैट टाइप ऑफ अडेप्टेशन इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन कि बुल्स के कोल वो जो हॉर्न आए दैट मेक्स देयर अडेप्टेशन मतलब उन्होंने सर्वाइवल के लिए किया वो एक की बने मतलब जो उन्होंने खाण नहीं आते थे या उन्होंने एनिमल दुश्मन से तो उन्होंने बड़ी जल्दी वो अपने हॉर्न ਨਾਲ की कर सकते हैं एलिमिनेट कर सकते हैं दैट इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। जो सैकेंड बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन ईवन ह्यूमन के भी है एज भी गल नहीं हैगी ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਸ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਵਿਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ वो चीज़ ने की किया उन्होंने इंश्योर किया कि बहुत तेजी ने की कर सकते हैं स्विम कर सकते हैं अगर तेजी ने स्विम करनगे वाटर के दैन वो जोड़ा बंदा शिकार करना आ रहा तो बच सकते हैं दैट इज एड टू देयर सर्वाइवल मतलब इट आल्सो पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्लीयर कि फिशर के वो चीज़ वो ऑर्गन डिवेलप हो जिसमें कर सकते हैं ज़्यादा तेजी में स्विम कर सकते हैं क्लीयर शायद थोड़ा थोड़ा तुम कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। थर्ड चीज़ है टॉर्टोराइज कच्छू घुमा अब तुम टॉर्टोराइज में देखोगे वो एक शैल बनया होंगे शैल बहुत कैड़ा होंगे वो शैल क्यों बनया होगा वट इज द रीजन एक्चुअल इट आल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन उस शैल में की है उस शैल के अंदर चले जाते तो आपके बहुत सारे दुश्मनों को बच जाता है ऐसा की है टॉर्टोराइज की जी गिनती है जो स्पीसीज है वो ग्रो करनी स्टार्ट हो गई सिर्फ उस शैल करके अगर वो शैल ना बनता फिर की है कच्छू घुमे बड़ी चीज़ हुई है टॉर्टोराइज में बड़ी शिकार मतलब मार सकते थे एंड उन्होंने स्पीसीज खत्म हो जाए सो दैट आल्सो एड्स टू देयर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन। थर्ड एग्जांपल सेकंड एग्जांपल क्या लिखी कि फिश दी एंड थर्ड एग्जांपल इज टॉर्टोराइज क्लियर हो रहा कॉन्सैप्ट कि मैं कह रहा अडेप्टेशन का। चलो नेक्स्ट चीज़ देखो जो नेक्स्ट आ सकता तुम अक्सर सुने होना गिरगिट कहावत है कि गिरगिट वांगू रंग बदलना जो गिरगिट है बेसिकली वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकता है एज पर एज द इन्वायरमेंट मतलब अगर इतने बैठा तो उन्होंने वाइट कलर का हो जाएगा तो अपन दिखना ही नहीं है कि इतने गिरगिट बैठा है अगर वो दिख ही नहीं रहा तो शिकार भी नहीं होना है इस तरीके ने किया उस क्वालिटी ने देखो हम स्ट्रक्चर भी चेंज कर रहे हो पहला रेड कलर का फिर ग्रीन का हो गया फिर वाइट का हो गया दैट इज आल्सो एड अप इनटू देयर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन वो भी किया स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का पार्ट है ठीक है किया तो सर्वाइवल क्या हो गया अच्छे तरीके ना होना स्टार्ट हो गया क्लियर वो वाली कॉन्सैप्ट क्लियर हो रहे हैं। एक फोर्थ हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज अबाउट लोइन अगर तुम लोइन का ना कलर देखा होगा तो मेरा कलर आलमोस्ट ग्रास वर्गा होता है मैं ग्रीन कलर की गल नहीं कर रहा जो अपना थोड़ा थोड़ा मैं कह कलर का ब्राउनिश का जो ग्रास होंगे जो ब्राउनिश ग्रास होंगे उनका कलर आलमोस्ट वो वर्गा होंगे तो अक्सर क्या होता है जो जिन्हों शिकार करने जा रहे हैं तो शिकारी जिन्होंने शिकार बनना होंगे उन्होंने पता ही नहीं लगता कि कोई शेर आ गया कोई ग्रास और वह कलर बिल्कुल सेम है तो बड़ी ईजी कर सकता है शिकार कर सकता है तो उस स्ट्रक्चरल चेंज ने कि ब्राउनिश कलर के होए उन्होंने सर्वाइवल में बता अगर शेर को खाना नहीं मिलूगा उन्होंने अपनी स्पीसीज को किमें लेके जाएंगे पूरा खत्म हो जाएंगे दैट एड्स टू देयर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन होपफुली क्लियर हो रहा है कॉन्सैप्ट तुम कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का मतलब की है कि किस तरीके की है ये चीज़ा होंगे हैं एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स देखोगे फ्लावर्स किमें हो फ्लावर्स बेसिकली देखो डिफरेंट कलर के होंगे कोई येलो कलर का होंगे कोई रेड कलर का होंगे बिकॉज ऑफ देयर कलरेशन एंड स्ट्रक्चर बहुत सारे कीड़े वगैरह होंगे उन्होंने अट्रैक्ट होंगे जो कीड़े वगैरह अट्रैक्ट होंगे दैन उन्होंने कीड़े की हेल्प में प्लांट्स क्या करते हैं पॉलीनेशन करना स्टार्ट कर देते हैं तो 10th क्लास पढ़ा होगा पॉलीनेशन क्या होंगे पॉलीनेशन की हेल्प में स्पीसीज अगे बढ़ती है हम देखो अगर रंग बिरंगे इतने ना होंगे तो क्या वो जिन्होंने भवरे कहने होंगे हिंदी के क्या वो अट्रैक्ट हो पाते तुम इदा करो एक येलो कलर की जैकेट पा लो तो देखो तो इंसैक्ट वगैरह बहुत अट्रैक्ट होंगे तो मक्खियाँ वगैरह तो आके बैठ गई दैट इज अट्रैक्शन मतलब फ्लावर्स द इस कलर ने भी हेल्प किया उन्होंने उधर स्ट्रक्चर चेंज होया एंड हेल्प किया उन्होंने सर्वाइवल के लिए क्लीयर। चलो नैक्सट चीज़ है बिहेवियरल
कि बिहेवियरल अडेप्टेशन किहड़ी होंदी है। 2 एग्जाम्पल दूंगा मैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाऊँगा। अगेन देखो मोस्टली जो जानवर होंदे ने वो ग्रुप्स च रहिंदे ने, वो किवें रहिंदे ने ग्रुप्स च, जिवें कहंदे झुंड, जिवें भेड्डां हो गईयां जां ईवन कई भेड़िए दीयां जातां ने जिहड़े कि हमेशा झुंड च रहिंदे ने। तो झुंड च रहने करके की है उन्होंने एक्सट्रा प्रोटैक्शन मिलती है। सपोज करो उन्होंने कोई अटैक कर रहा है दैन सारा झुंड की है वो चीज़ को प्रोटैक्ट कर सकता है। मतलब डैट इज बिहेवियर, उन्होंने बिहेवियर आ कि वो ग्रुप च रहिंदे ने। तो इस बिहेवियर करके उन्होंने स्पीसीज की आ इवॉल्व होने स्टार्ट हो गए, वरना अगर वो ग्रुप च ना रहते होंगे तो शिकारी को शिकार करके खा जाते। पॉइंट क्लियर होया मैं किस तरह कह रहा बिहेवियर। तो एक पॉइंट मेरे ख्याल से बहुत। नैक्सट चलते हैं आप। नैक्सट थिंग, हाँ एक बड़ी इंटरस्टिंग चीज़ है बिहेवियर के जे आप फिजियोलॉजिकल कह सकते हैं। तुम मकड़ी देखी होनी है, जो मकड़ी है एक्चुअली जाल बुनती होती है। जाल बुनना क्या होता है, फिर अपने ट्री या अपने शिकार वो फसा देती है। अगर वो जाल नहीं बुनेगी, अगर उसका बिहेवियर नहीं होगा कि जाल नहीं बुनेगी तो वो अडेप्ट नहीं कर पाओगे, अब देखो सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दैट आल्सो कम्स इन द बिहेवियर अडेप्टेशन। किसी एग्जाम्पल आ गई है ऑफ मकड़ी की एग्जाम्पल आ गई, ठीक है जी। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल ने हो सकती हैं। हाँ एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बड़ा ही मतलब चलाक एनिमल है। वो की करता, तुम एक वर्ड सुना ना मिमिक्री, मिमिक्री करना सुने तुम सुनया होना। बहुत सारे आर्टिस्ट दूसरे की आर्टिस्ट की मिमिक्री करते हैं। ऐसे जो ऑक्टोपस है, सपोज करो ने फिश का शिकार करना है तो जिदा ही फिश नजदीक जाना तो फिश वांगू बिल्कुल बिहेव करना, वो वांगू तैरना, तो उन्हें लगता है कि मेरे नाल भी फिश है बट एकदम मेरे पर अटैक कर रहा है। मतलब जो ऑक्टोपस आ बहुत ज़्यादा माहिर है मिमिक्री करने। दैट कम्स इनटू देयर फिजिकल अडेप्टेशन। मतलब उस जीव ने जिस चीज़ को सीखा ये चीज़ में हेल्प कर रही है हम कि वो अपने शिकार कर रहा है, अपनी स्पीसीज को अगे बढ़ा रहा है। क्लियर, होपफुली अडेप्टेशन का समय कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मेनली 3 तरह की अडेप्टेशन होती है, ठीक है जी। एक ये आप होर कर सकते हैं, जिमें सप्प की गल कर ली, अगर आप सप्प की गल करिए, सप्प के पहला जहर नहीं होंगे, बाद में क्या होया उन्हें जहर बनाना स्टार्ट करता। जो जहर है दैट इज द चेंज इन देयर फिजियोलॉजी, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हुआ थोड़ा बहुत। तो जहर करके किया हम अपने प्री में बड़ी इजली करता है डंग के उन्होंने खा लेंगे, बट पहला मतलब प्रॉपर्टी नहीं होती थी, अगर तुम सुनया होगा। एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है स्नेल की, थोड़ी स्क्रीन पर भी आ रहे हो। स्नेल, स्नेल के कोल, स्नेल मतलब ऐसी जिसको तीनों ही अडेप्टेशन प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल भी है, बिहेवियर भी है, फिजियोलॉजिकल भी है। थोड़ी स्क्रीन पर आ रही है कि किस तरीके स्ट्रक्चरल है, किस तरीके की है बिहेवियरल। क्लियर, चलो होपफुली आप लोग टॉपिक क्लियर हो गया होगा अडेप्टेशन का कि अडेप्टेशन क्या होती है। अच्छा अगर मैं डेफिनेशन नोट करनी गल करा कि भाई अडेप्टेशन की डेफिनेशन नोट करनी आप, वैसे डेफिनेशन नोट करने की जरूरत नहीं हैगी, आप जस्ट कॉन्सैप्ट समझना है। अच्छा अडेप्टेशन 2 तरीके से होर होती है, दैट इज शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। प्लीज नोट करो इस चीज़ को, अडेप्टेशन 3 तरीके से आ होती है, एक 2 तरीके से होर होती है। फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के क्वेश्चन आ सकता कि डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन एंड लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन। थोड़ा समझ देना क्या होता है, फिर मैं डिफरेंस लिखना, जब मैं पहला डिफरेंस लिख देना फटाफट, फिर आप क्या करते हैं समझते हैं कि ये क्या होता है। ठीक, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। जब मैं डिफरेंस लिखते हैं थोड़े सामने, तो प्लीज़ एक बार डिफरेंस लिखो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन क्या फर्क है, एक बार स्क्रीन शॉट लेके डिफरेंस लिख दो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन। हम थोड़ा जहा समझ लेते हैं, फोकस से स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। देखो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का मतलब की है, पहली गल तो नोट करनी है आप, जो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का आइडिया ये मोस्टली कोल्ड ब्लडड ऑर्गेनिज्म के अप्लाई होता है। मैं एग्जाम्पल देना समझा सकता, सपोज करो एक स्नेक सीगा, ठीक है, स्नेक मोस्टली कोल्ड ब्लडड होंगे ने, या लेजर्ड है या केंडी है, डड्डू भी है। सपोज करो तुम किसी स्नेक पॉइंट
ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਨੇਕ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਖੱਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੱਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਨੇਕ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਸਨੇਕ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਨੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਥੀਸ ਅਪੀਅਰਸ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਤੇ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਸਨੇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ 1 ਮੰਥ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਉਸ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਈਂਗ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡੱਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੀਅਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਹ ਹੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦੇਨ ਸਨੇਕ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੋਰਮਲ, ਉਹਦੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਇਹ ਅਕਵਾਇਰਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਰ ਤੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, these develop in response to a struggle for existence in order to survive। ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਆਸਟ੍ਰਿਚ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਡੈਪਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੈਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਮਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ